Hello dear students, this is Bhagyashree Wankede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 4, WDM and CDM. WDM means wavelength division multiplexing and CDM means code division multiplexing from the unit 4, multiplexing and multiple access of the subject digital communication system whose subject code is 22428. The vision of the department is to nurture profession diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineering. To complete this vision, we have five mission statements, and these five mission statements are like first one is imparting quality education for to meet society and industry needs. Second is provide ethical and outcome based education for the development. Third one is inculcating creative thinking through innovation and co and extracurricular activities among students. Fourth one is enhance the leadership skill and employability or higher education. Fifth is seeking continuous improvement of knowledge and skill. The PEOs, that is program educational objectives, are first one is provide socially responsible environment friendly solutions to electronics and telecommunication engineering related broad based problems adapting professional ethics. Second is adopt state of the art electronics and telecommunication engineering broad based technologies to work in multidisciplinary work environment. Third one is solve broad based problems individually and as a team member communicating effectively in the world of work. The prerequisite knowledge means for getting knowledge about today's topic, we should have the prior knowledge of concept of sampling process and sampling theorem, Nyquist rate, Nyquist interval, types of sampling, natural and flat top sampling, concept of quantization and compounding. उसके बाद में DPCM, PCM, DM, ADM जो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं सिग्नल को, ये सारी टेक्निक्स हमने पढ़ी है. उसके बाद ASK, FSK, PSK, QPSK एंड QAM जो कि डिजिटल से बैक एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, तो ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में. नाउ आज का जो टॉपिक है ये यूनिट नंबर 4 से बिलोंग करता है और यूनिट नंबर 4 का जो कोर्स आउटकम है वो है मल्टीप्लेक्स एंड डीमल्टीप्लेक्स डिजिटल सिग्नल. और यहाँ पे जो कोर्स आउटकम 4 है वो हमने मैप किया है 7 POs के साथ में. नाउ द लर्निंग आउटकम मीन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टुडेज टॉपिक व्हाट नॉलेज शुड वी गेन, वो है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्शन. उसके इसका मतलब वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, कैसे अचीव किया जाता है. उसके बाद कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, उसके क्या एडवांटेजेस है एंड हम देखेंगे कि कैसे इनको अचीव किया जाता है और ट्रांसमिट किया जाता है. नाउ व्हाट इज़ मीन बाय वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. सो अभी हम सभी लोगों ने TDM पढ़ा है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी पढ़ा है जिसमें हम एक कंप्लीट फ्रीक्वेंसी बैंड को नंबर ऑफ चैनल्स में डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज में डिवाइड करते हैं और हर एक फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है उसमें से एक एक सिग्नल को भेजते हैं. और ये सारी प्रोसेस साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, यानी सारे सिग्नल अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को लेके एक ही समय पे ट्रांसमिट हम कर सकते हैं. सो दिस इज़ द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ FDM जो WDM है. अब WDM में वेवलेंथ डिवीजन होते हैं, यानी वेवलेंथ को हम डिवाइड करते हैं. तो इंस्टेड ऑफ दैट सिग्नल वी आर यूजिंग हियर लाइट सोर्सेस, है ना, ऑप्टिकल फल. और जो चैनल होता है फ्रीक्वेंसी का दैट वी आर यूजिंग हियर ऑप्टिकल चैनल. तो ऑप्टिकल चैनल का मतलब जिसमें से लाइट ट्रांसमिट हो सकता है. अब जो डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स ये किस पे डिपेंड करते हैं लाइट के वेवलेंथ पे. अगर अलग अलग वेवलेंथ वाले हम सिग्नल लेते हैं लाइट के तो अलग अलग कलर को हम रेडिएट कर सकते हैं. सो हमको अगर अलग अलग लाइट सोर्सेस को भेजना है थ्रू वन चैनल देन वी कैन यूज़ हियर WDM system. So this is the main block diagram of this WDM. अब WDM में क्या है, बहुत सारे लाइट्स आ रहे हैं यहाँ से. देखिए आप, ये पहला लाइट, दूसरा लाइट, तीसरा लाइट, चौथा लाइट, और हर एक लाइट की वेवलेंथ जो है वो अलग अलग है सो दैट इट कैन रेडिएट डिफरेंट कलर्स. तो यहाँ पे हमको डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं. अब हम ये सारे वेवलेंथ को या सारे अलग अलग कलर को मल्टीप्लेक्सर से मल्टीप्लेक्स करेंगे सो दैट ये कंबाइन होके एक ही सिग्नल बनेगा लाइट का. और ये जो ट्रांसमिट करना है दिस इज़ द मीडियम, है ना, यानी चैनल.
तो ये कौन सा चैनल चाहिए जिसमें से लाइट पास हो सके, वो होगा हमारा ऑप्टिकल फाइबर, है ना। ऑप्टिकल फाइबर से ही हम लाइट को ट्रांसमिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ये जो कंबाइन वाले लाइट है ये यहाँ पे डिमक्स में जाएंगे, और डी मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, ये जो कंबाइंड लाइट है उनको सेपरेट करने का काम करेगा, फिर से वापस सेपरेशन। और ये जो पर्टिकुलर रिसीवर एंड है ट्रांसपोंडर्स, वो पर्टिकुलरली ये जो पहला ट्रांसपोंडर है जो कलर का लाइट भेज रहा है, जो इसकी वेवलेंथ है वो सेम वेवलेंथ वाला ट्रांसपोंडर रिसीवर एंड पे रहेगा, सो दैट वो वही कलर वाले लाइट को एक्सेप्ट करेगा, बाकी को रिजेक्ट करेगा। तो रिस्पेक्टिव कलर वाले लाइट्स रिस्पेक्टिव ट्रांसपोंडर्स के पास में ही जाएंगे। सो दिस इज जस्ट लाइक अ एफडीएम में हमने अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को लिया था, फिर कंबाइन किया था मल्टीप्लेक्सर से और कंप्लीट बैंड को हमने भेजा था, फिर डीमल्टीप्लेक्स होता है और फिर डीमल्टीप्लेक्सर उस फ्रीक्वेंसीज को अलग कर देता है, यानी अलग अलग सिग्नल्स को। लेकिन यहाँ पे लाइट सोर्स है, सोर्सेस आर विद द लाइट सोर्सेस, इसलिए लाइट सोर्स को ट्रांसमिट करने के लिए हमें ऑप्टिकल फाइबर की ज़रूरत होती है। सो ये वाला जो ट्रांसपॉन्डर है ये इसके साथ ट्यूनेबल होना चाहिए। ट्यून का मतलब क्या है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है या इसकी जो वेवलेंथ है वो सेम वेवलेंथ यहाँ पे भी होना चाहिए, सो दैट इसने जो लाइट ट्रांसमिट किया वो सेम लाइट ये यहाँ पे कैच कर सके। हम कहते हैं ना कि जैसे हमारे जैसे रेडियोज़ का एग्जांपल ये है कि हमारे पास जो ब्रॉडकास्टिंग एरिया है वो तो बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज को दे रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, लेकिन 94.3 एफएम ये ट्यून होता है कब, जब वो हवा में से या आने वाले फ्रिक्वेंसीज में से बराबर 94.3 वाले फ्रिक्वेंसी को ही सिलेक्ट करता है, क्योंकि वो चैनल जो है वो स्पेशली ट्यून किया जाता है 94.3। वो बाकी फ्रिक्वेंसीज को कैच नहीं करेगा, लेकिन वो बराबर 94.3 वाले फ्रिक्वेंसीज पे जो प्रोग्राम्स को ट्रांसमिट किया जा रहा है उसी को ट्यून करेगा और उसी को कैच करेगा। जस्ट लाइक दैट कि रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों की भी फ्रिक्वेंसीज या वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, ट्यून होनी चाहिए। इसके बाद में एडवांटेजेस देखते हैं हम डब्ल्यू के। इट वर्क्स विथ एग्जिस्टिंग सिंगल मोड कम्युनिकेशन फाइबर। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें नया सिस्टम इंक्लूड करना है, जो एग्जिस्टिंग सिंगल मोड फाइबर है उसी के साथ हम काम कर सकते हैं। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रोटोकॉल दैट हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, सिक्रेसी बहुत मेंटेन की जा सकती है। उसके बाद इंस्टेड ऑफ स्विचिंग टू अ न्यू टेक्नोलॉजी अ न्यू चैनल कैन ईजिली बी एडेड टू एग्जिस्टिंग चैनल। नया टेक्नोलॉजी, ज़्यादा नंबर ऑफ़ लाइट सोर्सेज को अगर हमें भेजना है या कुछ एडवांसमेंट करना है तो हमें नए टेक्नोलॉजीज़ पे स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्स्ट्रा चैनल हम ऐड कर देते हैं तो भी हम बल्क अमाउंट में डेटा को सेंड कर सकते हैं। नाउ अब हमने टीडीएम देखा, एफडीएम देखा और डब्ल्यूटीएम भी देखा। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में टाइम डिवाइड हो रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सभी सिग्नल की कांस्टेंट है, यानी एक जैसी है। सेम फ्रीक्वेंसी पे हम अलग अलग टाइमिंग में सिग्नल्स को भेज रहे हैं, इसका मतलब है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या है, हमने फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया है, हर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, लेकिन हम सभी सिग्नल को एक साथ भेज रहे हैं, यानी एक ही समय पे भेज रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी यूज़र कभी भी एक ही समय पे एक ही फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके हज़ारों लाखों यूज़र्स अपने अपने सिग्नल्स को भेज सकते हैं? अगर ऐसा कोई सिस्टम अवेलेबल है तो वो सिस्टम है कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें नंबर ऑफ़ यूज़र्स कैन यूज़ द सेम फ्रीक्वेंसी, एक ही फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकते हैं और एक ही समय पे यूज़ कर सकते हैं विदाउट गेटिंग इंटरप्टेड, यानी एक दूसरे का कोई इंटरप्शन नहीं होगा। क्योंकि टीडीएम में भी हमने उसके ड्रॉबैक्स देखे टीडीएम सिस्टम के, कि टाइम अगर एक जैसा रहा तो फ्रीक्वेंसी एक होने की वजह से वो मिक्सअप हो सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डिवीजन में हमने फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया था, लेकिन अगर एक जैसी फ्रीक्वेंसी है तो जम्बलिंग हो सकता है ना, इंटरमॉड्यूलेशन हो सकता है, क्रॉस टॉक हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा सिस्टम है कि जहाँ पे नंबर ऑफ़ यूज़र सेम फ्रीक्वेंसी सेम टाइमिंग पे यूज़ कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिक्स भी नहीं हो सकते? तो ऐसी टेक्निक्स को ही हमने कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहा गया है। इस सिस्टम में क्या होता है कि हर एक जो यूज़र होता है वो खुद का एक कोड जनरेट करता है और उस कोड को कहा जाता है स्प्रेड स्पेक्ट्रम। अब स्प्रेड का मतलब क्या है कि हमारा बैंडविड्थ बहुत बड़ा है, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो लेंथ है, स्पेक्ट्रम है,
वो बहुत बड़े फ्रिक्वेंसी वाला है। यानी आप इमेजिन करो कि आपने यहाँ से सैटेलाइट की तरफ एक सिग्नल को छोड़ दिया, तो सैटेलाइट तक जाने के लिए जो फ्रिक्वेंसीज यूज़ हो रही है वो बहुत बड़ा एरिया है ना। यानी वो कहीं पे भी गुम हो सकता है हमारा सिग्नल। लेकिन हमारे सिग्नल के साथ में अगर हमने एक कोड ऐड कर दिया, हर एक यूज़र ने उसका खुद का एक कोड ऐड हो जाता है स्पेक्ट्रम करके। और ये जो कोड होता है ये स्पेशली ऑर्थोगोनल्स कोड होता है। ऑर्थोगोनल का मतलब इन ऑल डायरेक्शन, है ना। यानी ये कहीं पे भी घूम सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन ये हर एक कोड हर एक दूसरे यूज़र के कोड से टोटली डिफरेंट होता है, एकदम डिफरेंट, जिसकी वजह से उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे हमारा मोबाइल नेटवर्क जो होता है, मोबाइल से अगर आप अपना कोई सिग्नल भेज रहे हो या अपना कोई मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हो, तो दूसरे के मोबाइल के ट्रांसमिट किए हुए सिग्नल से वो टोटली डिफरेंट रहेगा। यानी हर एक बंदे का अलग अलग कोड डिज़ाइन होता है। वो एट द सेम टाइम जब हम उसको ट्रांसमिट करते हैं, हमारा स्पेक्ट्रम कोड डिज़ाइन हो जाता है हर यूज़र के साथ में, और उसको बड़ी एक फ्रीक्वेंसी रेंज में छोड़ा जाता है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है ये हम लास्ट यूनिट में देखने वाले हैं कि कैसे स्पेक्ट्रम कोड को डिज़ाइन किया जाता है। वो पूरी टेक्नोलॉजी हम इसके बाद वाले यूनिट में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल के लिए आपको इतना ही समझना है कि कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हर यूज़र के साथ में एक कोड डिज़ाइन होता है, और वो कोड उसके मैसेज के साथ में अटैच हो जाता है, सो दैट उसकी सिक्योरिटी को इतना पैक कर देता है, मैसेज की सिक्योरिटी को इतना टाइट कर देता है कि कोई दूसरा बंदा उसको लीक नहीं कर सकता। जिसको भेजना है उसी के पास में वो जाके बराबर रिसीव होगा। बाकी तीसरे के लिए वो नॉइज़ के तौर पे ऐड हो, यानी आइडेंटिफाई करेगा। तीसरे के लिए वो सिग्नल कोई काम का नहीं रहेगा। लेकिन ये जो स्पेक्ट्रम है ये आइडेंटिकल पेयर्स के लिए है, इंटेंडेड पेयर के लिए है। इंटेंडेड पेयर यानी मुझे जिसको सिग्नल भेजना है उसी के लिए, उसी के पास में जो कोड जनरेट होगा उसी के लिए ये कोड जाके रुकेगा। तीसरे के लिए ये सिग्नल एक नॉइस या एरर के तौर पे काम करेगा। तो दिस इज़ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी। तो हम देखते हैं कि CDM इज़ अ सिस्टम इन विच वी कैन ट्रांसमिट सिग्नल from a series of independent sources at the same time over the same frequency band. That means the entire bandwidth of the system is available to all signals all the time. आप सोच सकते हो कि सारी की सारी बैंडविड्थ, पूरी फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ ये सभी सिग्नल्स के लिए, सभी पूरे समय के लिए अवेलेबल है। इट यूजेस ऑर्थोगोनल कोड्स टू स्प्रेड ईच सिग्नल ओवर अ लार्ज कॉमन फ्रीक्वेंसी बैंड। स्प्रेड सिग्नल कैसे बनाए जाते हैं ये हम जो लास्ट यूनिट है हमारा 5th यूनिट स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन, तो उसमें देखेंगे। इसके बाद कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन इंटेंडेड पेयर्स ऑफ यूजर्स ओनली। इंटेंडेड पेयर का मतलब जिस जिस ट्रांसमीटर को जिसके पास भेजना है, जिस यूज़र के पास भेजना है उसी के पास जाएगा। इंटेंडेड यानी बाय इंटेंशन मुझे जिसके पास भेजना है उसी के पास जाएगा। अनइंटेंडेड यूजर्स नॉट एबल टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन। कोई तीसरा बंदा इस इंफॉर्मेशन को निकाल नहीं सकता। इट इज़ जस्ट लाइक एन एरर और नॉइज टू देम। ईच यूज़र यूजेस डिस्टिंक्ट स्प्रेडिंग कोड टू प्रोड्यूस इट्स ओन स्प्रेड स्पेक्ट्रम सिग्नल। अब देखिए हर एक यूज़र का खुद का एक कोड होगा, ठीक है, जो कि खुद का स्पेक्ट्रम सिग्नल को जनरेट करेगा। और ये सारे जो कोड्स हैं ये ऑर्थोगोनल कोड्स होते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे जैसे ये एक यूज़र सोर्स है ए नाम का, फिर ऐसे करके हम बहुत सारे सोर्सेज n नंबर तक ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये जो यूज़र है सोर्स, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है इसके साथ में खुद का एक स्प्रेडिंग कोड जनरेट हुआ है। वो कोड ऐड हो जाएगा, एक्सऑर हो जाएगा, और उसको हम मॉड्यूलेट करेंगे थ्रू द मॉड्यूलेटर एंटीना से। फिर ये सिग्नल ट्रांसमिट होके एक बड़े चैनल में जो फ्री स्पेस है दैट इज़ ट्रीटेड एज अ चैनल। तो यहाँ पे ये चैनल के थ्रू ट्रांसमिट होगा। अगर ये बी के पास जाने की कोशिश करता है, अब यहाँ पे तो बहुत सारे हमारे बहुत सारे यूज़र्स हैं ना अवेलेबल थ्रू आउट द टोटल ऑन द अर्थ। तो जितने भी यूज़र्स हैं वो किसी के भी पास अगर जाता है तो दैट इज़ ट्रीटेड एज नॉइस। लेकिन ये बी के भी पास जाएगा, ये कोड ए के भी पास आएगा, ये ए सी के भी पास जाएगा, एन नंबर ऑफ इसके पास जाएगा, लेकिन ये बाकी सभी के लिए नॉइस के तौर पे रहेगा। ये ए का इंटेंडेड पेयर कौन है यहाँ पे, ए, जिसको मुझे भेजना है, तो वही सब सिर्फ इसको डिकोड कर सकता है।
बाकी कोई भी इसको डिकोड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसका जो कोड यहाँ पे पीएन सीक्वेंस जनरेट किया गया है वो डिस्प्रेडिंग कोड सेम यहाँ पे भी जनरेट किया जाता है, सो दैट वो आइडेंटिफाई कर सके। नाउ CDM के एडवांटेजेस क्या है? इट प्रोवाइड्स अ वेरी हाई नॉइस इम्यूनिटी, यानी उसमें एरर ऐड नहीं होती। ऑल सोर्सेज कैन बी ट्रांसमिट सिग्नल साइमल्टेनियसली, सभी सोर्स एक ही समय पे एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम कर सकते हैं। सेम फ्रीक्वेंसी कैन बी यूज बाय ऑल द यूजर्स और सोर्सेज। हाई डिग्री ऑफ सिक्योरिटी, एक दूसरे का डेटा हम शेयर नहीं कर सकते या लीक नहीं कर सकते। इसका डिसएडवांटेज यही है कि सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स है उतने ऑर्थोगोनल कोड्स डिज़ाइन करना बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी को जनरेट करता है ना। नाउ वी कैन समराइज दिस टॉपिक कि हमने WDM का मीनिंग पता किया है, CDM यानी क्या होता है ये हमें पता है, और WDM और CDM में कैसे ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हमने हाउ टू ट्रांसमिट द सिग्नल उसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ द सिस्टम, ये भी हमने देखा है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस। और इसके बाद वाला जो टॉपिक है, बाद वाला जो वीडियो है वो है मल्टीपल एक्सेस। So thank you so much students for watching this video carefully.